क्या आप लोग हमको देख पा रहे हैं? Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. All of you are market. What is the lesson? Markets Chapter around us. Ma'am, Chapter market 23, markets around us. Around us. Markets around us. And this is my request to all of you. Please keep your copy, CW copy with you. Today I will give you some classwork also. And those who will complete or when after the completion, you please share your screen with me. And at that time, I will do correction and show your write your name in my diary. Okay? समझ में आ रही बात मेरी? Yes, Yes or no? Yes, ma'am. Now open chapter, that is the chapter 23, market around us, and now 193, page number 193. In our yesterday class, we have studied about the what is the definition of the market. Market is a place where the seller and buyer sell and purchase the goods. Okay, and the demand and supply also. The demand for a good is a defined as an amount of commodity for which people are willing to pay or buy. Or what is the supply? Supply of a good is the quantity that the suppliers are willing to put in the market. जितना मतलब this is the demand. उसके बाद after that we have studied about the Indian market, Indian cotton market during the British period. And one point was also there, and that was the weekly market. Weekly market. Are you remembering all that? आप लोग को याद आ रहा है सारा कुछ? Yes, ma'am. Yes. What is the weekly Yes, market? ma'am. कोई बताएंगे हमको? Weekly market और पहाड़ी market, पटरी market? The market Thanks. which is set up on the roadside on some specific days are called weekly markets. Weekly market. Ma'am, many markets there? set up. Why the commodities are cheap there? Because they do not have to be physical or rent. Because they sold their own materials and they don't have transportation charge and Storage charges, etc. बहुत बढ़िया. Because Very they good. don't have any overhead expense. Yes. But that is good. That is मैम good. कहीं Good. से Right. आवाज आ रही है. अब वो तो तुम लोग को अपना देखना पड़ेगा थोड़ा सा. अभी आशुतोष रंजन का माइक आपकी वो संदेश की आवाज आ रही है. आशुतोष रंजन के यहाँ से हम भी वही बोल रहे हैं. आशुतोष रंजन का माइक ऑन. तो ये तो तुम लोगों को खुद थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा ना. नहीं कर पाते हो तो यहाँ प्रॉब्लम होता है. Now we start children, and today do you know page number है 193. Do you know marketing is different from advertising? Yesterday हमने एडवर्टाइजिंग का भी थोड़ा सा आप लोगों को बोला था, लेकिन मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम एडवर्टाइजिंग. एडवर्टाइजिंग क्या करता है? एक्सैजरेट करके चीजों को पढ़ाता है. लेकिन मार्केटिंग में क्या होता है? हम लोग वहां डायरेक्ट चीजों को देखते हैं. इज इट राइट? Advertising persuades the customer to buy, but marketing is a systematic planning to bring the buyer and seller close for buying and selling. मतलब यहाँ पर क्या करता है? बायर और सेलर को क्लोज कर देता है, एक दूसरे के नजदीक ले आता है कि जो चीज आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, एक दूसरे का देख करके हम लोग खरीदते हैं और बेचते हैं. मार्केट कीप चेंजेज ऑल द टाइम. और मार्केट चेंज भी कर रहा है. अब जैसे सपोज करिए, अभी देखिए एक ई मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, और डे बाय डे एवरी डे अब ये ई मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आता जा रहा है. अभी कहा जा रहा है कि जो लोकल गवर्नमेंट भी चाहती है कि ई मार्केटिंग से जो लोकल हमारे यहाँ के छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, उनको भी एक चैनलाइज करके कि उनका भी प्रॉफिट और काम बना रहे, और दे विल आल्सो गेट, उनका दुकान बंद नहीं हो. इस पे भी हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है. ठीक है. तो मार्केट का डे बाय डे जो है चेंजिंग, लेकिन कुछ ट्रेडिशनल जैसे पहाड़ी मार्केट, पटरी मार्केट और आपका रिटेलर जो आपके घर के पास है, ये सब अभी चेंज नहीं हो रहा है. लेकिन उन लोगों का भी प्रॉफिट बना रहे, इसके लिए गवर्नमेंट उनमें भी, तो ये दीज आर जो रिटेलर्स और ये सारे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं. गवर्नमेंट इनको ऑर्गेनाइज कर देना चाहती है. अब कहता है कि अब द होलसेल मार्केट इज गिविंग वे टू रिटेल जाइंट्स. अब रिटेल जाइंट्स हो रहा है. रिटेल जाइंट्स मतलब जो ऐसे जाइंट्स किसको कहते हैं? बिग. ओके, बिग बॉस या राक्षस जिसको हम लोग कहेंगे, इतना बड़ा कि सबको अपने अंदर समेट ले. दैट इज द
जाइंट का मतलब इतना बड़ा कि सारे कुछ उसके अंदर आ जाए। तो अब जैसे रिलायंस फ्रेश, बिग बाजार, शॉपर्स स्टॉप, विशाल मेगा मार्ट एक्सेट्रा, दे रन चेन स्टोर। अब ये लोग सामान बेचते हैं रिटेल में, चेन स्टोर इनका है, इतना इनके पास पैसा है, इसीलिए इनके जाइंट नाम दिया गया, रिटेल जाइंट। इतना इनके पास दे हैव सच अमाउंट ऑफ मनी कि ये रिटेल चेन चलाते हैं। और क्या करते हैं, डायरेक्ट किसे खरीद लेते हैं, प्रोड्यूसर से खरीद लेते हैं, मैन्युफैक्चरर से खरीद लेते हैं, और उसको जो है अपने पास स्टोर कर लेते हैं। स्टोरेज का भी इनके पास, बिकॉज दे आर बिग जाइंट्स। तो अब व्हाट डिड दे डू, अब ये लोग क्या पटरी मार्केट की तरह एक पैसा भी कम करते हैं? नो। और उसके बाद जो आपके बगल का जो डोर साइड जो आपका रिटेलर है, वो जैसे आपको क्रेडिट पे सामान देते हैं, तो क्या ये आपको देते हैं? नो, दे बिलीव ओनली इन मेकिंग प्रॉफिट। ये लोग जो है क्या करते हैं, प्रॉफिट बनाने पे ही विश्वास रखते हैं। दे हैव गेन पॉपुलैरिटी एज दे बाय डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर एंड सेल टू द कंज्यूमर एट रीजनेबल प्राइस इन ए कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर, बट वी वांट टू go there and we want to purchase the things there, because here a word has been used, that is the comfortable atmosphere. What is the meaning of the comfortable atmosphere? They provide music, they provide AC hall for our purchasing, or sometimes some schemes also, buy two get one free, these types of schemes, and they attract the customers. People want to go there and to just to for their shopping in a comfortable atmosphere. Is it? विवेक वर्मा भी लगता है सो कर उठा है क्या, आंख भी नहीं धोया है विवेक? Am I No, right? ma'am. No, ma'am. But you are not Ma'am, looking very fresh. No, ma'am. You are not सुबह looking- सुबह उठे, मैम सुबह Okay, सुबह okay. 3:30 बजे से उठे मैम। अच्छा, okay, no problem. Most people prefer shops in the neighborhood for their day-to-day requirement, and they can visit them anytime. But अब देखिए दोनों चीज बोलते हैं, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में we want to go there, but लोग कहाँ से, people कौन सा इन्वायरमेंट पसंद करते हैं? तो देयर जो उनके नेबरहुड में जो दुकान होता है, अब क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो वहां कभी भी जा सकते हैं। That's why the people like. Okay, next है आपका कहता है, as they can visit them anytime. Moreover, the customers and the shopkeeper know each other well, and goods are also available on credit, so the payment can be made at a later date as per the convenience of the customer. अब वहाँ कहता है कि वहाँ लोग जाते क्यों हैं? क्योंकि वहाँ सामान हम लोग को क्रेडिट पे भी मिल जाता है, तो that's why people prefer to go there. और हम लोग जो दुकानदार है उसको भी जानते हैं, और दुकानदार कस्टमर को भी जानता है। मार्केट्स एंड डेमोक्रेसी, अब कहता है कि डेमोक्रेसी और मार्केट। देखिए एडवर्टीजमेंट में भी डेमोक्रेसी था, तो एडवर्टीजमेंट में भी हम लोगों ने पढ़ा था एक चीज जो हमेशा ही रिपीट कर रहे हैं, आई एम रिपीटिंग एंड कोरिलेटिंग द चैप्टर, बोथ आर डिफरेंट थिंग। एडवर्टीजमेंट एक्सजरेट and wash out the brain of the customer, but market does not exaggerate. It brings close to the seller and buyer directly, and then they sell and buy the things according to their own choice और अकॉर्डिंग टू देयर ओन क्या कहिएगा, उन वर्ड्स, अपने बातों पर, उन कंडीशन। तो अब यह कहता है डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी मींस इक्वालिटी, लेकिन मार्केट में क्या इक्वालिटी है? यस और नो बताइए। नो मैम। इन्होंने नो कहा, No, ma'am. आंसर तो बताइए। हाँ, नो बोला विवेक ने। व्हाट, व्हाई यू आर सेइंग नो? विवेक बोलिए। मैम मैम कैन आई से? हाँ बोलिए, जिनको बोलो। विवेक यू जस्ट वेट। Ma'am. हु इज देयर? हु इज आस्किंग? मैम कैन आई से? मैम उदित yes, राज। हाँ उदित, यस मैम उदित। क्योंकि वहां पे मैम जो पुअर होते हैं वो ज्यादा ब्रांडेड चीज नहीं खरीद पाते हैं, और जो रिच होते हैं वो खरीद पाते हैं, इसलिए यहाँ पे इनइक्वालिटी होता है। इसलिए यहाँ कोई और जो आंसर देना चाहता है? वेरी गुड उदित। Ma'am, may I? यस, हु इज देयर? अनिका। Ma'am, Anika. यस अनिका, यू आर वेलकम। Ma'am, because as similar to advertising, this makes us feel like branded things are much more better than local things. But this makes the poor to think that they are not able to purchase. हाँ ठीक है, वो है, यह आपने ठीक किया, इसको तो कोरिलेट कर दिया एडवर्टाइजिंग से, लेकिन बट यहाँ सही है, आपका आंसर राइट है।
लेकिन थोड़ा सा उसमें यू नीड टू चेंज योर आंसर फॉर सम टाइम, और दैट इज द मार्केटिंग डेमोक्रेसी का ऑल आर इक्वल। डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी एक सिंपली ले लेते हैं, ऑल आर इक्वल, लेकिन मार्केट ऑल्सो क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन। कैसे करता है? अब बिग जाइंट्स, रिलायंस, बिग बाजार और व्हाट एवर दे आर, और रिटेलर्स जो हमारे यहाँ का है, और रिटेलर्स के यहाँ के जो फिक्स मार्केट जो क्रेडिट पर लेते हैं, तो दे प्रेफर टू गो टू देयर नेबरहुड मार्केट because they purchase their goods at their credit and they pay money for them at later according to their convenience. But in the big giant and big shop like Reliance or Big Bazaar or Shoppers Stop, they do not provide any credit facility to their customers. And by this way, if I have no money or less money, I cannot visit to these types of malls or markets. Is it clear? इस तरह का हमको मेरा आंसर होगा। आप लोग दोनों का आंसर सही था, उदित एंड अनिका। वेरी गुड। नाउ मार्केट्स एंड डेमोक्रेसी, पेज नंबर इज 193. As you know, there are different types of market like retail stores, malls, wholesale shops, and weekly markets. They are owned by different people. On one hand, we have the shopkeeper who sets up his shop in different areas on specific days of the week. He stores his goods at home and transport and sells them himself or with the assistance of the members of his family. मतलब लोगों, अपने घर के लोगों की मदद से ही अपना सामान बेचता है। यहाँ देख लिए, असिस्टेंस का मतलब मदद से। On the other hand, we have a chain store whose owner spends a lot of money on decorating, maintaining and stocking it. अब दूसरी तरफ क्या है, हमारे पास एक चेन स्टोर भी है जिसका मालिक जो है खूब ढेर सारा पैसे खर्च कर रहा है। किस चीज पे खर्च कर रहा है? रख सामान के स्टॉक करने पर, दुकान के डेकोरेशन पर। तो both shopkeepers spend an unequal amount of money. अब दोनों शॉपकीपर क्या करता है? खर्च कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं अनइक्वल अमाउंट ऑफ मनी। अनइक्वल क्यों हो जा रहा है? बिकॉज first shopkeeper is not spending very much on the decoration and for the attracting his customers, and he is not spending very much on the क्या कहेंगे कि for keeping employees, and the big giants or big stores are keeping employees, they are spending a lot of amount for the decoration of their shop, and by this way they are creating discrimination. ठीक है? तो अब जो फर्स्ट लोकल जो है उसके यहाँ कौन से कस्टमर आएंगे? जो थोड़े कम पैसे खर्च करना चाहते हैं, क्रेडिट पे भी सामान लेना चाहते हैं। तो उसका पूंजी क्या होगा? कैपिटल कम हो जाएगा, वो कम सामान लाएगा, धीरे धीरे बेचेगा। और जिन लोग ये बिग जाइंट्स जो हैं, बिकॉज दे आर गेटिंग एवरी डे, एवरी टाइम they are getting cash amount of the money, that's why they are spending a lot of money in the market and they are coming forward speedily. This is the difference between these two. One is the local market, local shopkeeper, and another is the big giants like Reliance, Big Bazaar, Shoppers Stop, etc. Both shopkeepers spend an unequal amount of money. Similarly, there are differences in the buying power of the customers. देखिए जो मैंने बोला आप लोगों को, one buyer may be able to afford only cheap goods from a weekly market, whereas another may buy branded items from top stores. The selling as well as buying depends on money. So here, democracy and market. Ma'am, you are muted. Ma'am, you are muted. Ma'am, Ma'am, You- you are muted. ma'am, you are muted. And ma'am, your video is off. Sorry children, a call has किसी बच्चे का ही फोन आ गया था. He was not
attending the classes and he was informing me. Okay. लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि बीच में आप लोग फोन नहीं किया करिए क्लास के बीच में, सारे लोग, ठीक है? अगर कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर दिया करिए. Now, moreover, the goods are brought to the customer after passing a chain of markets. This chain helps in supplying goods produced in different areas to reach the customers everywhere. The sale of goods increase production, that in turn also provide new earning opportunities for more people. But everyone does not get equal benefit of those opportunities in the market. Do you know there are two types of markets in an economy: commodity market, weekly market, or branded market. And second is the factor market: land, revenue, capital, and entrepreneur, enterprise, organizer. The endeavor of Indian government is to reduce inequality in them. ठीक है? Markets also determine the wages. मतलब मार्केट से क्या होता है? वेज, मजदूरी. मार्केट में देखिए सब तरह का सामान बिकता है. लिविंग बीइंग भी मार्केट के ही पार्ट होते हैं. लिविंग बीइंग का मतलब जैसे होता है आपके घर में लेबर वगैरह काम करते हैं तो सेलिंग एंड बाइंग. अब वहाँ लेबर क्या करता है? अपने लेबर को, अपने मेहनत को सेल करता है, और जिनको अपना काम करवाना होता है वो क्या करते हैं? बाई करते हैं, खरीदते हैं. ठीक है? तो हर जगह हर कोई एक कहीं कमोडिटी बन जाता है जहाँ की लोग सेल और बाई करता है. तो यहाँ लिविंग बीइंग आर द कमोडिटी. ठीक है? हमारे यहाँ जो घर में काम करने वाले होते हैं या जो सर्विस करते हैं, हम लोग भी वी आर ऑल्सो ए कमोडिटी. कहीं हम लोग अपने मतलब मेहनत को देते हैं. आप सपोज करिए इकोनॉमिक्स आप लोग पढ़ेंगे जब और बड़े हो जाएंगे तो इसमें जैसे मार्केट का वेज कैसे फिक्स करता है बता देते हैं. आपकी मम्मी घर में खाना बनाती है? बनाती है? यस और नो बोले सारे बच्चे. Yes, ma'am. Yes. मम्मी खाना बनाती है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो क्या आप उसके लिए मम्मी को कुछ पैसे देते हैं कि मम्मी खाना बनाने के लिए पैसे ले लीजिए? No, ma'am. यस, नो. No, ma'am. और अगर आपके घर में कोई मेड आकर बनाती है तो पैसे देते हैं ना बनाने के लिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देते हैं. तो दैट इज सी इज अ कमोडिटी इन द मार्केट. ठीक है? समझ में आ गई बात? Yes. यस, दैट इज द. तो इसी तरह से जो लोग भी पैसे के लिए जो भी काम करते हैं, लेकिन मार्केट में पैसे के लिए ही काम किया जाता है. ठीक है? और जो लोग हम लोग मतलब सर्विस अपना फ्री देते हैं तो दैट वहां पे हम लोग मार्केट के पार्ट नहीं रह पाते. यही कहता है मार्केट ऑल्सो डिटरमाइन द वेजेस. और जॉब वेयर देयर आर मेनी विलिंग वर्कर्स, हाई सप्लाई बट ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ पोजीशंस, लो डिमांड विल रिजल्ट इन ए लो वेज फॉर दैट जॉब. Competition among workers tends to lower the wages. If any one worker demands a higher wage, the employer can remove him and simply hire another at a low wage. अब अगर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा हमारे यहाँ काम करने के लिए हैं और ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, तो जब अगर लेकिन लेबर ज्यादा है, मेरे पास अल्टरनेट रहता है, तो हम क्या करते हैं? कम पैसे वाले को अपने यहाँ काम के लिए लगा देते हैं. That is the mean. Hence we see that market creates economic inequality. अब मार्केट क्या करता है? हम देखते हैं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, क्योंकि वेजेस में भी लोग कमी जब देखते हैं कि किसी को जरूरत ज्यादा है तो उसके साथ हम लोग बार्गेनिंग करके कम पैसे में अपने यहाँ काम पे लगा लेते हैं. Which means inequality of economic asset and income among individual and group within a society. अब कहता है कि अब इसको दो तरह से भी आप देख सकते हैं, एबल, एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट. किसी चीज में जो जानता है पूरा और जो नहीं जानता है, तो जो नहीं जानता है उसका क्या होता है? वेज कम होता है, और जो स्किल लेबर होता है उसका वेज ज्यादा होता है. इज इट क्लियर? आप लोग समझ में ये बात आ गई? क्या समझ? विवेक बताओ. Yes, ma'am. विवेक बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड अनस्किल? बताओ. मैम स्किल्स में मतलब जैसे मैम हम लोग लगाए मैम, जैसे बाय वन गेट वन फ्री मैम, ये सब स्किल्स रहते. नहीं, that is not skill. Labor, here we are talking about the skilled labor and unskilled labor. स्किल लेबर एंड अनस्किल लेबर. बताइए. और कोई बताना चाहते हैं? Anyone else? Ma'am, may I? हाँ, yes. स्तुति, yes, स्तुति. Ma'am, बोलिए. Anika. अनिका, Yes, yes, अनिका. ma'am. हाँ, बोलिए. यस मैम. मैम स्किल लेबर मैम जो लेबर काम सीखा हुआ हो, जो उसे अच्छे से जानता हो. Yes, and unskilled का मतलब जो नहीं सीखा. Ma'am, यस जो मैम. मैम नहीं सीखा हो. ma'am, you are again muted.
हाँ जिसको हाँ, तो स्किल लेबर जो वर्क जानता है और अनस्किल जो काम नहीं जानता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब हमारा जो स्किल लेबर को हम लोग ज्यादा पे करते हैं, क्यों? क्योंकि वो काम जानता है। अनस्किल को कम पे करते हैं। तो अनस्किल क्या करता है? कम बेस पे काम करता है। स्किल जो है अपना फिक्स पे काम करता है, फिक्स पे काम करता है, फिक्स उसका अमाउंट रहता है, इतना पैसा दीजिएगा तो काम करेंगे, अदरवाइज आई विल नॉट वर्क, आई विल गो समवेयर एल्स फॉर माई अनदर वर्क। उसके बाद कहता है कि अब इससे क्या होता है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होता है। कोई कम पैसा कमाता है, कोई ज्यादा पैसा कमाता है। तब अब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हुआ, कोई कम कमाएगा, कोई ज्यादा कमाएगा। तो जो ज्यादा कमाएगा वो बेटर लिविंग कंडीशन में रहेगा, ज्यादा सामान खरीद सकता है, और जिसके पास कम पैसा है वो कम सामान खरीदेगा, उसका लिविंग कंडीशन भी उतना अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ economic assets and income among individuals and group within a society. The term is also related to inequality of opportunity. मौका भी कम मिलता है, जो लोग स्किल रहते हैं उनको ज्यादा मौका मिलता है, जो अनस्किल रहते हैं they will get the less opportunity. A democratic government is committed to protect the interest of all sections of the society. Otherwise, equality will be meaningless for them. अब कहता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या, गवर्नमेंट का रोल क्या होता है मार्केट में, ऐसे मार्केट में? तो वो सबको चाहती है कि उसको बेसिक फैसिलिटीज हम लोग देते हैं गवर्नमेंट का डेमोक्रेसी में, ठीक है? इक्वलिटी फॉर ऑल। इक्वलिटी कहाँ पे? रहने के लिए सबको घर मिल जाना चाहिए, खाने के लिए सबको अनाज मिल जाना चाहिए। अब स्टैंडर्ड अब पॉकेट के हिसाब से रहता है। अब जिसके पास ज्यादा पैसा वो बड़े मकान में रहेगा, अपना बनवाएगा। जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं उसको गवर्नमेंट अपना कुछ दे देगी कि आप इसमें रहिए, अब तो उसको उसमें ही रहना, क्योंकि उससे ज्यादा पैसा खर्च कर नहीं सकता है। यहाँ पर मीनिंग यही हुआ, protect the interest of all sections of the society, otherwise equality will be meaningless for them. Our government has taken many steps to protect the interest of the people. The government has fixed minimum wages so that the workers are able to fulfill their basic needs. Besides opening employment exchange to register names of unemployed candidates who desire employment. The government ensures the distribution of rice, wheat, sugar and kerosene at a reasonable rate for the poor under the public distribution system, PDS. राशन का दुकान, यहाँ पर ये PDS उसी को कहते हैं। तो गवर्नमेंट देखिए जो पुअर लोग हैं उन लोगों के लिए कि कम दाम में आपके खाने का सामान मिल जाए। The government also announced the support price for the crops. अब गवर्नमेंट क्या करती है, जो अनाज जो किसान उपजाता है उसका सपोर्ट प्राइस भी इससे कम में मार्केट में नहीं बेचा जा सकता है। To safeguard the interests of the farmers and save them from the exploitation by the money lenders, village touts, wholesale and retail giants. अब देखिए यहाँ पर wholesaler and retail giants आ गए। वो लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूसर जो फार्मर, अब वहां जाते हैं और बिल्कुल सस्ते दाम में सामान खरीद लेते हैं, अपने स्टोर कर लेते हैं, because they have the storing capacity, and then they sell these things in the market, open market or retail through their retail chain stores at higher price. Okay, and makes maximum profit in by this way. The government also provide electricity, irrigation facilities, technical assistance, loans and insurance facilities at subsidized rate. Subsidized मतलब कम रेट पर फिक्स कर देते कि इतने पे आपको बिजली का आप फार्मर्स के लिए और बाकी जो लोग कारखाने होते हैं जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए वहां फिक्स कर देती है। डू यू नो PDS has been made more transparent by digitalization on the ration card, supply chain management, toll free helpline etc. पहले बोलता है PDS में लोग जो है क्या करते थे, राशन का सामान अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते थे, लेकिन नाउ द गवर्नमेंट हैज लोगों का आधार नंबर से राशन के दुकानों पे जो वहाँ जो लोग के राशन कार्ड होल्डर हैं उनका आधार नंबर, और देखा जाता है कि whether they have taken the ration or not, और अगर कोई कंप्लेन हो तो टोल फ्री नंबर पे ये किया जाता है। तो जो राशन के दुकानदार हैं अगर अच्छे से राशन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं तो उनका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाता है। A democratic government must provide opportunity to ensure equitable distribution of goods, services, as well as sufficient income for all to eradicate inequalities in the society. Okay? किसी को इसमें कुछ पूछना है? Anyone wants to ask any question? No, ma'am. पूछ लीजिए, नहीं तो हम पूछेंगे। What is the meaning of eradicate? बताइए। I will ask. आप बोले no, but हम पूछेंगे। To remove. To remove. बहुत To remove. बहुत Ma'am, अच्छा, very good.
बहुत अच्छा, वेरी गुड, टू रिमूव। नाउ देखिए ऑनलाइन शॉपिंग का भी एक दिया है। मीनिंग ऑफ हाँ, स्नैपडील, होम शॉप 18, अमेजन, ये सारा देखिए दिया हुआ है इसमें आपका। अब नाउ चिल्ड्रन, आई हैव टोल्ड व्हाट यू, इज इट? हाँ, आई हैव टोल्ड यू दैट ऑल ऑफ यू अपने क्लासवर्क कॉपी में राइट डेट एंड CW and chapter name and do A and share your copy with on your screen and I will copy आपका देखेंगे और I will give you marks. I write your name. Okay. Do मैम A. डिजिटाइजेशन मैम मतलब क्या कीवर्ड्स होता है? क्या बोले? मैम डिजिटाइजेशन मतलब? डिजिटलाइजेशन, डिजिटल बना देना। डिजिटलाइजेशन का मतलब होता है डिजिटल बना देना। मैम और डू यू नो डिजिटल का मैम मतलब वो समझ में आ गया ना? नहीं आया? डिजिटाइजेशन? बोलिए। मैम डिजिटाइजेशन है। और मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ What is meaning of? मैम डिजिटल बना देना का मतलब उसको ऑनलाइन कर देना, कोई कहीं से भी उसको देख सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटलाइजेशन। समझ में आई बात? उदित, यस मैम, हो यस गया मैम। ना? डिजिटलाइजेशन ऑन राशन कार्ड मतलब राशन कार्ड को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर देना, इसको ओपन कर देना, ऑनलाइन कर देना। दैट इज द डिजिटलाइजेशन। समझ में आ गई? और कोई पूछ रहा था किसी चीज का मीनिंग? बोलिए। नो। कोई पूछ रहा था कीवर्ड्स को देंगे होमवर्क के लिए। पहले अभी तुरंत CW इज दिस, राइट? डेट एंड लेसन आप लोग लिखेंगे अपने कॉपी में। जिनके कॉपी में भी डेट एंड लेसन नहीं लिखा रहेगा उन लोगों के आई विल नॉट चेक योर कॉपी। डेट एंड लेसन, राइट? एंड उसके बाद डू ए ऑफ लेसन 23, do A of lesson 23 in copy। जिनका भी हो जाए वो अपना स्क्रीन शेयर करेंगे, हम देख लेंगे। आई विल चेक योर कॉपी। मैम यस, मैम ए में मैम सीधे मैम सिर्फ क्वेश्चन लिख के सीधे आंसर लिख देंगे या मैम ऑप्शन दे के टिक कर देंगे? सारा करेंगे, ऑप्शन देकर टिक करेंगे। ओके मैम। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, स्टार्ट नाउ। मैम आप म्यूट हैं। आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस मैम, अब आ रही है मैम। आ रही है ना? ओके ओके। Those who will complete, please अनाउंस करेंगे, उनकी कॉपी को मैं देखूंगी। ओके
Yes, ma'am. Are you completing? All of you? किसी का कंप्लीट हुआ? नो मैम। नो मैम। अच्छा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैम मैं क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पे हूँ। ओके ओके ओके, जिनका भी कंप्लीट हो जाएगा उतना स्क्रीन शेयर करेंगे तुरंत। There is no class tomorrow. All of you have got the notice or not? I have shared the notice in the class. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. There is no class tomorrow, and after that tomorrow, a day after tomorrow is Sunday, and the next class is on Monday, and that is 17th. Yes, ma'am. Yes. Or your homework is write keywords of the lesson in your homework copy. This is your homework. आकांक्षा कुमारी जिसमें जिस सेक्शन की उनकी मम्मी आ रही है स्क्रीन पे, लगता है वो भी मम्मी का बैक आ रहा है। आई हैव चेंज्ड आकांक्षा का। Yes, now your copy आ गई अब तुम्हारी। क्या देख लो कॉपी को? You have completed आकांक्षा? आकांक्षा, have you completed? No मैम। No. Most of you have left the class. Today number of participants is very less. मैम क्योंकि ज्यादातर लोग आज ही मकर संक्रांति आज ही मकर संक्रांति मना रहा है।